السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ویڈیو کا عنوان ہے غسل کا بیان۔ اس سے پہلے میں وضو کے مسائل کے بارے میں بیان کر چکی ہوں، اس لیے آج میرا موضوع ہے غسل کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنب میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ یعنی غسل کرو۔ اور فرماتا ہے حتیٰ یطہرنا، اے مرد تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں پاک ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ جو شخص جنابت کے غسل میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا فرض ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ پانی دیکھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ یعنی کہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ بخاری مسلم۔ امہات المومنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پہلے بھی احتلام بدخوابی سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کا دخل ہوتا ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و ستھری بیبیاں ہماری مقدس مائیں پاک ہیں، اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس قول کا تعجب ہوا۔ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو۔ حیض والی اور جنب قرآن سے کچھ نہ پڑے، ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ مسجد میں حیض والی عورتیں اور جنب کے لیے پرہیز کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہ فرماتے۔ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ آج کل بہت بے علم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے یوں غسل نہیں اترتا اور نہ اس غسل سے نماز ہو سکے گی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے نیچے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں اور زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک ہر پرزے پر پانی بہے۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جمی ہو جو پانی بہنے سے روکے تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، جبکہ چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریزے، اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے کہ چھڑانے کے قابل نہیں ہوتا، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں جم جاتی ہیں اور ان کے چھیلنے میں ضرر کا اندیشہ ہے تو اس قدر کی معنی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک اس کا دھونا کہ پانی کو سون کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر کثافت رینٹ جم گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا بھی دھونا فرض ہے۔ بلا کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 3، تمام ظاہری بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا، جب تک کہ ایک ایک ذرے پر پانی بہتا ہوا نہ گزرے گا غسل ہرگز نہیں ہوگا۔
गुस्ल की एहतियातें। गुस्ल में दो किस्म की बे एहतियातियाँ पाई जाती हैं जिनमें गुस्ल नहीं होता और नमाजें बर्बाद हो जाती हैं। अव्वल, पानी को बाद जगह तेल की तरह चुबड़ लेते हैं या भीगा हाथ पहुंच जाने पर कनाअत करते हैं, हालांकि ये मसा हुआ गुस्ल ना हुआ। गुस्ल में पानी हर जगह बह जाना ज़रूरी है। नंबर 2, अक्सर अवाम बल्कि बाज़ पढ़े लिखे भी ये करते हैं कि सर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया, हालांकि बाज़ जगह ऐसी हैं कि जब तक ख़ास तौर पर एहतियात ना की जाए वो नहीं धुलेंगी और गुस्ल ना होगा। लिहाजा हम यहाँ तफसील से बयान करते हैं, खूब तवज्जो से पढ़ें और सुनें और हमेशा ध्यान में रखें कि बदन के हर जर्रे पर रोंगटे पर पानी बहाना फ़र्ज है, वरना गुस्ल ना होगा। वज़ू में जिन अज़ा की एहतियात की जाती है उसका लिहाज यहाँ भी ज़रूरी है। उनके अलावा ख़ास गुस्ल में एहतियात की जगह ये हैं। सर के बाल बूंदे ना हों तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहना ज़रूरी है और बूंदे हुए हों तो औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त बुंदी हुई हो कि बेखोले जड़ें तर ना होंगी तो खोलना ज़रूरी है। कानों में बाली वगैरह जेवरों के सुराख का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सुराख का हुक्म वज़ू में बयान हुआ है, उसे फिर देख लें। कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह, कानों के पीछे बाल हटाकर पानी बहाएं। थोड़ी और गले का जोड़ के बेमुंह उठाए ना धुलेगा। दो बगले के बे हाथ उठाए ना धुलेंगी। बाजू का हर पहलू और पेट का हर जर्रा। पेट की प्लेटें उठाकर और नाक में उंगली डालकर धोएं। रान और पेड़ों का जोड़ और रान और पिंडली का जोड़, दोनों शरीर मिलने की जगह रानों की गुलाई और पिंडलियों की करवटें। ढरकी हुई पिस्तान को उठाकर धोएं, पिस्तान और पेट के जोड़ की जगह। शर्मगाह का हर गोशा, हर टुकड़ा नीचे ऊपर ख्याल से धोया जाए। हाँ, अंदर उंगली डालकर धोना जरूरी नहीं। मुस्तहिब है, यूं ही है जो नफास से फारुग होकर गुस्ल करती हैं तो एक पुराने कपड़े से अंदर से खून का असर साफ कर लेना मुस्तहब है, लाजमी नहीं। माथे पर अफशान चुनी हो तो उसका छुड़ाना जरूरी है। यूं ही बालों में अगर इतना गूंद वगैरह लगा है तो उसके होते बाल अच्छी तरह तर ना होंगे तो उसका छुड़ाना भी जरूरी है, वरना गुस्ल ना होगा। गुस्ल की सुन्नतें। गुस्ल की नियत करके पहले दोनों हाथ घुटनों तक 3 मरतबा धोएं, फिर इस्तंजा की जगह धोएं, हुआ नापाकी हो या ना हो। फिर बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसे दूर कर ले। फिर नमाज का सा वजू करे मगर पाँव ना धोए। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर या पक्के फर्श पर नहाए तो पाँव भी धो ले। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ लें, खुसूसन जाड़े में। फिर 3 मरतबा दाएं मुंडे पर पानी बहाएं और फिर 3 मरतबा बाएं मुंडे पर, फिर 3 बार सर पर और तमाम बदन पर पानी बहाएं और यहाँ से हट जाएं और वजू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो लें। नहाते वक्त किबले को मुंह ना करें, तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें। ऐसी जगह नहाएं कि कोई ना देखे। औरतों को इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। किसी किस्म की ना बातचीत करें, ना कोई दुआ पढ़ें। बैठकर नहाएं और नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन लें। वज़ू की सुन्नतें और मुस्तजबात का गुस्ल में भी ख्याल रखें। गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होता है? 5 चीजें हैं कि इनमें से एक भी पाई जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। मनी आपका अपनी जगह से शऊद के साथ यानी मस्ती की हालत में अलग होकर शर्मगाह से निकलना। लिहाजा अगर मनी शऊद के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने के सबब निकली या पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शऊद निकल आए तो इन दोनों सूरतों से गुस्ल फर्ज नहीं, अलबत्ता वजू टूट जाएगा।
इस्लाम यानी सोते से उठे और बदन या कपड़े पर तरी पाई तो गुस्ल वाजिब है, अगरचे ख्वाब या याद ना हो। हाँ, अगर यकीन है कि ये मनी या नदी मज़ी नहीं बल्कि पेशाब या पसीना है या कुछ और है, तो अगरचे इस्लाम याद हो और ख्याल में अंजाल की लज्जत हो तो गुस्ल वाजिब नहीं। अगर मनी ना होने का यकीन है और मज़ी का शक है, तो अगर ख्वाब में इस्लाम हो या होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं, और याद है तो गुस्ल फर्ज है। मर्द और औरत एक चारपाई पर सोए और जागे तो बिस्तर पर मनी पाई गई, उनमें से हर एक इस्लाम का इनकार करता है तो दोनों गुस्ल करें। शूद के वक़्त शुरू में जो चीज़ शर्मगाह से सफ़ेद रंगत की निकलती है, उसके निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ख्वाहिश और बढ़ जाती है, उसे मुज़ी कहते हैं। और शूद के बाद जब खूब लज्जत आती है तो एक गाढ़ी रतूबत शर्मगाह से निकलती है, उसे मनी कहते हैं। मनी निकलने के बाद शहूत तो ख्वाहिश खत्म हो जाती है और जोश ठंडा पड़ जाता है, उससे गुस्ल फर्ज हो जाता है। मज़ीद निकलने पर गुस्ल फर्ज नहीं। मुतफर्रक मसाइल, जिस पर चंद गुस्ल हों, सबकी नीयत से एक गुस्ल कर लिया, सब अदा हो गए, और चूंकि गुस्ल की नीयत की है तो सबका स्वाब मिलेगा। औरत पर गुस्ल फर्ज था और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज शुरू हो गया तो चाहे अब नहा ले या हैज खत्म होने के बाद। जिस पर गुस्ल फर्ज था उसे चाहिए कि नहाने में देर ना करे। हदीस शरीफ में है, जिस घर में जुनूब जिस पर गुस्ल फर्ज होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर उतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिर वक्त आ गया तो अब फौरन नहाना फर्ज है। अब देर लगाएगा तो गुनाहगार होगा। जुनूब अगर खाना खाया या औरत से सुबत करना चाहता है तो वजू कर ले या हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ले, और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मकरूह है। और मोहताजी लाता है और बेनहाए या बेवजू किए जमा कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं। रमज़ान में अगर रात को गुस्ल की हाजत हो गई तो बेहतर यही है कि सुबह सादक से पहले नहा ले, ताकि रोज़े का हर हिस्सा नापाकी से खाली हो। और गुस्ल ना किया तो भी रोज़े में कुछ नुकसान नहीं, मगर मुनासिब ये है कि गरगरा और नाक में पानी चढ़ाना ये दोनों काम फजर का वक्त शुरू होने से पहले कर ले, फिर रोज़े में ना हो सकेंगे। और अगर नहाने में इतनी देर लगा दी कि दिन निकल आया और नमाज कज़ा कर दी तो ये और दिनों में भी गुनाह है, और रमज़ान में और ज़्यादा। जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, कुरान जी छूना या बेछुए देख कर या ज़बानी पढ़ना या ऐसा तवीज़ छूना जिस पर आयत लिखी हुई है हराम है। कुरान जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं। यूं ही रुमाल वगैरह ऐसे कपड़े से पकड़ना जो ना अपने जिस्म पर है ना कुरान पर चढ़ा है तो जायज़ है। हाँ, कुर्ते की आस्तीन, दुपट्टे की आंचल या जो चादर चढ़ी होती है उसके कोने से छूना हराम है। दुरूद शरीफ और दुआओं के पढ़ने में कोई हरज नहीं, मगर बेहतर यह है कि वजू या कुल्ली करके पढ़े। अज़ान का जवाब देना उन सब को जायज़ है। कुरान की कोई आयत अगर दुआ की नियत से पढ़ी जाए, जैसे शुक्र के मौका पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा तो कुछ हरज नहीं। जिसका वजू ना हुआ उसे भी कुरान करीम या उसकी किसी आयत का छूना हराम है। इसे बेछुए ज़बाने या देख कर पढ़े तो कोई हरज नहीं। किस पानी से वजू गुस्ल जायज़ है और किस से नहीं। मी, नदी, नाले, चश्मे, समुंदर, दरिया, कुएं और बर्फ ओले के पानी से वजू गुस्ल जायज़ है। जिस पानी में कोई चीज मिल गई हो कि बोल चाल में उसे पानी ना कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया, जैसे शरबत, या पानी में कोई ऐसी चीज डालकर पकाएं जिसे मकसूद मैल काटना ना हो, जैसे शोरबा, चाय, गुलाब या और अरक, तो उसे वजू और गुस्ल जायज नहीं। अगर ऐसी चीजें मिलाएं या मिलाकर पकाएं जिससे मकसूद मैल काटना हो, जैसे साबुन या बेरी के पत्ते, तो वजू जायज है। हाँ, अगर वो पानी गाढ़ा हो जाए तो वजू गुस्ल जायज नहीं। और मुख्तार वगैरह
اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدل گئی مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی سی زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے، تو وضو غسل جائز نہیں۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ وغیرہ، بہتا پانی کو اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں اگر نجس چیز سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ پانی اس وقت تک پاک ہوگا کہ نجاست نیچے بیٹھ جائے اور اس کا رنگ بو مزہ ٹھیک ہو جائے۔ میਂਹ برستے میں چھت کے پرنالے سے جو میਂਹ کا پانی گرے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جب جا نجاست پڑی ہو، جب تک کہ نجاست سے پانی کا کوئی وصف، رنگ، مزہ، بو نہ بدلے۔ اور اگر میंਹ رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب چھت پر ٹھہرا ہوا پانی اگر چھت سے ٹپکے ناپاک ہے۔ وہ بڑے حوض جو عموماً مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں یا جنگل کے وہ گڑھے اور تالاب جو دور ہوں، یعنی جس کی لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، ان کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ، بو یا مزہ نہ بدلے۔ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو غسل جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی، انگور، انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس وغیرہ۔ جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اسے کسی طرح استعمال نہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر اسے کپڑا بھیگ گیا تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں برس یعنی کہ سفید داغ کا اندیشہ ہے، مگر پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اسے وضو غسل جائز نہیں۔ وضو یا غسل کرتے وقت پانی کے قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا۔ نابالغ کا بھرا ہوا پانی شرن اس کی ملک ہو جائے گا، اسے پینا یا اس سے وضو غسل کرنا یا کسی اور کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، اور اگر وضو غسل کر لیا تو ہو جائے گا مگر گناہ گار ہوگا۔ یہاں سے استادوں اور استانیوں کو سبق لینا چاہیے، وہ اکثر نابالغوں سے نل یا کنویں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں، اسی طرح بالغ کا بھرا ہوا پانی بغیر اجازت استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ بچے نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا، اگر معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست تھی جب تو ظاہر ہے کہ پانی گندا ہو گیا، ورنہ نجس نہ ہوگا، مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے۔ دیکھا کتنا ہوا ہے، 19 منٹ۔ پانی کے رہنے یا پائے جانے کی 2 جگہ ہے، معدن جیسے جھیل، چشمہ، نہر، ندی، سمندر اور بڑے بڑے حوض، گڑھے اور کنواں، مشک، مٹکے، ٹینکیاں، گھڑے، لگن اور ایسے ہی دوسری چیزیں۔ اور معدن ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کسی ناپاک چیز کے گر جانے سے مطلقاً اگر اس کے ناپاک ہو جانے کا حکم دیا گیا تو انسانیت سسک کر تباہ و برباد ہو جائے، یا اس پر ایسی
मशक्क़तों का हार अजीम आ पड़े जो उसकी बर्दाश्त व तहम्मुल से बाहर है। ज़ाहिर है कि इस्तेमाली बर्तनों या मशकीज़ों की तरह पानी के चश्मों या दरियाओं या नहरों या बड़े बड़े हौज़ों का ना कोई सरपोश है और ना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि जानवरों के लीद, गोबर और दरिंदों से वो महफूज रहें या कोई नजासत, कोई गंदगी उसके पानी को आलूदा ना कर सके। इसलिए शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया कि ऐसे पानी में अगर कोई नजासत वगैरह पड़ जाए या वहाँ दरिंदे गोबर, लीद, पेशाब, पखाना करें या नहाएं तो वो नजासत व आलूदगी पानी की पैदाइशी तहारत पर गालिब नहीं आ सकती और वो पानी आला हालिया पाक का पाक बाकी रहता है। इसके बरखिलाफ गड़े, मटके, लगन वगैरह ऐसे बर्तन जिन्हें नापाक हो जाने के बाद पाक करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती, शरीयत मुतहरा ने उनके मुतल्लक यही हुक्म दिया कि अगर वो नापाक हो जाएं तो उन्हें बात तरीके मारूफ पाक को साफ कर लिया जाए और उन्हीं के हुक्म में है कि पानी की वो टैंकियाँ या ज़ेरे ज़मीन हाउस जिनका अमूमन आजकल रिवाज पड़ गया है, अगर वो इत्फाक़न नापाक हो जाएं तो उन्हें 3 मरतबा धोएं और हर बार उसे कपड़े वगैरह से खुश्क करने की जहमत वगैरह की जाए। अब बाकी रही कुएं की, वो बड़े या वो हौज के हुक्म में नहीं कि उनके पानी को अब जारी करार देकर मुतलकन उनके पाक रहने का हुक्म दे दिया जाए और ना वो ऐसी चीज़ों में दाखिल है जिसका पाक साफ कर लेना ताकत बुशरा से बाहर और नाकाबिले बर्दाश्त अमर हो, और ना इतना आसान ही है कि जब चाहें उन्हें पाक कर लें जिस तरह इस्तेमाल बर्तनों को पाक साफ कर लिया जाता है और कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। शरीयत मुतहरा ने इंसानी ज़रूरतों और बुशरा तकाज़ों का लिहाज फरमाते हुए कुएं की तहारत के कई तरीके अपनी अपनी अहमियत और नौइयत के एतबार से अलहदा मुकर्रर फरमाए। कुएं का कुल पानी निकाला जाए जब कुएं में आदमी या किसी जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून या किसी किस्म की शराब का कोई कतरा या नापाक लकड़ी, कपड़ा या कोई और नापाक चीज़ें कुएं में गिर जाएं या जिन चौपाइयों का गोश्त नहीं खाया जाता उनका पखाना या पेशाब या मुर्गी की बीट उसमें पड़ जाए, या कुएं में आदमी, बकरी या कुत्ता या उनसे बड़ा या उनके बराबर कोई और जानवर जिसमें बहता हुआ खून होता है अगर गिरकर मर जाए, या कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हो वो गिर जाए या अगर गिर कर मर जाए अगरचे गिरने से पहले मुर्दा बच्चों को नहला दिया गया हो। मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या कोई और कोई मुज़ी जानवर जिसमें बहता हुआ खून हो उसमें मरकर फूल जाए या फट जाए, या 2 बिल्लियां मर जाएं या सूर कुएं में गिर जाए अगरचे ना मरे या उसकी हड्डी गिर जाए, या काफिर मुर्दा अगरचे 100 बार धोया गया है कुएं में गिर जाए या उसकी उंगली या नाखून पानी से लग जाए, या 6 चूहे गिरकर मर जाएं या छिपकली या चूहे की दुम कटकर कुएं में गिर जाए अगरचे फूली फटी ना हो। यूं ही जबकि जूता या गेंद कुएं में गिर गई और नापाकी होना यकीनी है। यूं ही कोई जानवर जिंदा निकल आया मगर उसका मुंह पानी में पड़ा और उसका जूता नापाक या मशकूक है तो इन सब सूरतों में कुएं का कुल पानी निकाला जाएगा। 40 से 60 डोल तक पानी निकाला जाए, जबकि कुएं में कबूतर, बिल्ली, मुर्गी गिरकर मर जाए, या 3 या 4 5 चूहे गिरकर मर जाएं, या छुई हुई मुर्गी कुएं में गिरी और जिंदा निकल आए। 20 से 30 डोल पानी निकाला जाए, जबकि चूहा, छछूंदर, चिड़िया, छिपकली या इनके बराबर या इनसे छोटा कोई दमुई जानवर कुएं में गिरकर मर गया और फूला फटा नहीं, या 2 चूहे गिरकर मर जाएं, या जो पानी में गिरा और पानी में उसका मुंह पड़ा, सिर्फ एहतियातन तस्कीने कलब के लिए 20 डोल निकालना मुस्तहिब है। जबकि जूता या गेंद या
कुएं में गिर गई और उसका नजीस होना यकीनी नहीं। सूअर के सिवा और कोई जानवर कुएं में गिरा मगर जिंदा निकल आया और उसके जिस्म पर नजासत लगी होना यकीनी मालूम ना हो और पानी में उसका मुंह ना पड़ा। यूं ही जिसका जूता पाक है, अब मसलन बकरी गिरी और जिंदा निकल आई। बच्चे के नहालचे का टुकड़ा कुएं में गिर गया और उस पर नजासत का होना मालूम नहीं। यूं ही बेवजू और जुनूब जिस पर गुस्ल फर्ज है, अगर बिला जरूरत कुएं में उतरे और उनके बदन पर नजासत ना लगी हो, बावजह जरूरत पानी की नापाकी का हुक्म ना दिया जाए, जबकि पानी का जानवर यानी वो जो पानी में पैदा होता है अगर कुएं में मर जाए या मरा हुआ गिर जाए, अगरचे फूला फटा हो मगर फटकर उसके अज्जा पानी मिल गए तो उसका पीना हराम है। या जिन जानवरों में बहता हुआ खून नहीं होता जैसे मच्छर मक्खी वगैरह, वो कुएं में मर जाएं या मरकर कुएं में गिर जाएं, या घड़ा बाल्टी डोल वगैरह जो बर्तन जमीन पर रखा जाता है अगर कुएं में डाला जाए या गिर पड़े, यूं ही लोटा के पखाने को ले जाते और मौजूद नजासत से अलग रखते हैं, वो कुएं में जा पड़े कुआं नापाक ना होगा जब तक नजासत मालूम ना हो। या अहले हनूद कुएं में अपने लोटे डालें और पानी भरें या उन पर खड़े होकर नहाएं या अपने कपड़े धोएं कि छींटे कुएं में जाएं जब नजासत यकीनन मालूम हो, और सिर्फ इस कदर कि गालिबन उनके बर्तन कपड़े नापाक होते हैं, हुक्म नजासत के लिए काफी नहीं, वरना बाजार की मिठाई और दूध घी वगैरह सब हराम ठहरेंगे। और ये हरज है और हर्ज मदफू बिन नस। हाँ, एहतियात इसमें है कि कुएं को उनके तसर्रुफ से बचाया जाए, बिलखुसूस मस्जिद के कुएं के उनके तसर्रुफ से दूर रहें, और अगर आम कुआं है जिसकी बंदिश नहीं हो सकती और कफ़ार और गमवार उसे पानी भरते या वहां नहाते धोते हैं तो ये महल जरूरत हरज में आ गया।